हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। चलो, वेलकम बैक। वी मीट अगेन। टुडे वी आर गोना डिस्कस चैप्टर 7, strategic risk. This is part of the self-paced module subject, risk management. I'm shooting this video for ICI so as to comply to their EOI, so as I could be taken as one of the faculties for providing you full-fledged video listing through ICI, and that too free of cost. ICI has been doing a very decent job, I'll say very good job in trying to support the student whatever best they can do. Now to come back, for people who don't know me, I'm CA Rupesh Mishra. I have also done my CS, my ICWA with all India rank. I have gone to IIM Ahmedabad through ICAI MOU. Again, I mean, hats off to ICAI. I have gone to Indian School of Business Hyderabad also from my organization. I am a 2007 pass out, 7-8 pass out, May 2008 for CA, and have been in the corporate job for 17 years. I've been teaching since around 17 years again. I have taught all type of students, and I'm very proud to have a good bunch of students doing very well in their life. Now coming to this chapter, strategic risk. It's a very small chapter here in this module. This chapter is again covered in your main module also. To some extent, there only it's a chapter. Here it's a full-fledged, subject in advanced financial management. But here to discuss on this chapter 7 of risk management against self-paced module. So strategic risk. What we're going to study in this chapter? What is strategic risk? Different type of strategic risk, and these four headings: business portfolio risk, industry competitions risk, investment and funding growth risk associated, and product and services risk, and ideas to mitigate risk. So strategic risk, strategy. I know you guys have studied the word strategy during your intermediate also. And believe me, it's a very, very important word. In case you want to be a corporate finance professional, you will every other day hear the word strategy. You will be surprised to know there are officers called chief strategic officers. There are department, full-fledged department of 10 people calling themselves manager strategy, deputy manager strategy, vice president strategy. So very, very important functions. So what is a strategy? Strategy is a long-term defined directions, plans organization wish to achieve through its competitive advantages. No, those are all the plan, long-term plan. Ultimately, the purpose is to maximize the wealth of investors and their shareholders through the achievement of those plans. Maximize expected return, etc., maximize profit, etc. But we are discussing here the risk part of a strategy. So what do you say? Strategy तो आपकी भी है रैंक लाने की, एंड आई एम श्योर कि आप उसको जो भी हर्डल्स हैं उसको मिटिगेट करते हुए रैंक लेके भी आए. Forget about rank. I mean, you will, passing CA itself is a big task. So you have a strategy of, clearing CA and becoming a chartered accountant, a gazetted officer. But does the strategy work all the time? Is it so? So strategic risk is a risk in which company strategy become less effective. मुझे मजा आ रहा है इसको आपके पर्सनल लाइफ से लिंक करने में. चलो कंपनी से रखते हैं. एक कंपनी ने सोचा था 100 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाया, प्रोसीजर्स बनाए, गोल्स बनाए, but struggles to achieve its goal. It could be due to technological changes. अब चारों तरफ अपने कार्ड कोड छापे, चारों तरफ एटीएम लगा, यहाँ पे व्हाट डू यू कॉल इट, गूगल पे टाइप आ गए, यूपीआई आ गए. A new competitor entering the market.
4-5 जो पुराने sort of players बैठे थे, they were doing all good. कोई नया player आ गया उठ के, specifically in the mobile space, specifically in the tech space, education space. You know, I am also coming as an online faculty now, so the established player might face some challenge. Shift in customer demand. पहले होता था, when I qualified my CA, सुबह 1.5 घंटे चल के 10 किलोमीटर समटाइम साइकिल से बस से जाके ट्यूशन पढ़ के 1.5 किलोमीटर, अब लोग घर पे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं. अल्टीमेटली टीचर ने तो वही बोलना है ना. डेफिनेटली फेस टू फेस के अलग एडवांटेजेस हैं, बट द टाइम कंजम्पशन एंड टाइम वेस्टेज एंड द एनर्जी वेस्टेज, 3 घंटे ट्रेवल टाइम वेस्टेज, रिसोर्स वेस्टेज, दोज वुड बी कॉस्टलियर बिकॉज वहाँ पे रेंट का एक्सपेंडिचर भी आएगा. सो चेंज, कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है. इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. अगेन, आप कोई पेंट बनाते थे, फ्रूट का रेट बढ़ गया, जो मेन रॉ मटेरियल है. चीनी बनाते हो, गुड़ का रेट बढ़ गया, या जहाँ से भी आप चीनी खरीदते हो. वैसे तो जनरली इट्स डिपेंडेंट ऑन द शुगर केन प्राइस. अगर शुगर केन का प्राइस बढ़ेगा तो चीनी का भी रेट बढ़ेगा. आप कुछ भी बनाते हो, आप अपना घर बनाने जा रहे हो, उसके रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, तो आप उस रेट पे आप वो चीज डिलीवर नहीं कर पाओगे. सो लाइक बीच में लैपटॉप्स का रेट बढ़ गया था क्योंकि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ चिप. पूरी दुनिया में चिप बनाने की काम हो गई, मोदी जी भी चिप के पीछे लग गए. और एनी नंबर ऑफ लार्ज स्केल चेंजेस, कोई बड़े लार्ज स्केल चेंजेस आ गए, सो दे ऑल विल लीड टू अ स्ट्रेटेजिक रिस्क. सो देखो, अगर आपको पता होगा, when you know कि there is sometimes strategy fail, तभी तो आप उसके कुछ mitigation plan लोगे. So here the purpose is to read what are the strategic risk under these 4 different categories. When you will know, there might be the risk, the business might get disrupted, but you will have a preconceived notion that never ever, what do you call it, underestimate your competitors or the risk or the market. Hope you have got the point. What is strategy? What is strategic risk? So now come to the business portfolio risk. There is another category. How do you divide the risk? One is the systematic risk. One is a unsystematic risk. Systematic risk is very, I'll say, established and economy driven. Like interest rate risk. Simple सी चीजें है. जब तक आपका प्रोडक्शन होते रहेगा, फिर जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फिर रेट कम हो जाएगा, रेट कम होगा तो फिर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी. एंड ये पूरा साइकिल है. दिस इज एन इकोनॉमिक साइकिल जो अपने 11वीं 12वीं के इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ था. तो उसकी वजह से जब जब रिसेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाते हैं. जब आपका जब रेट नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे सप्लाई बढ़ती है एंड ऑल दैट स्टफ. फिर परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है. फिर आपका मार्केट में भी कम मिलता है. देन जब लोग सब प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं तो गवर्नमेंट फिर इंसेंटिव लाती है, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं. और बिकॉज प्रोडक्शन वाज स्मॉल और सप्लाई वाज स्मॉल, मार्केट का भी थोड़ा फिर वो बढ़ जाता है. और गिवन देयर इज लेस सप्लाई तो पीपी जो होता है बैलेंस आ जाती है. I have been very brief. I know it required detailed 20-minute explanation, but it is the life cycle. अब हर 3-4 साल में 5 साल में डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री ये साइकिल आएगा ही आएगा. स्टेब्लिश प्रिंसिपल है यार, सीधी सी बात है. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन in case if the things do not change, in case there is a equal balance like economies of say Japan or something, then there might not be, वो उसी लेवल पे चलते रहेंगे. But in economies like India, जिस साल फसल ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, रेट कम आएंगे तो धीरे धीरे फिर वो अगले साल फसल कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, लोगों के पास पैसे कम आएंगे, वो साइकिल चलते रहता है. These things affect the 3 main factor: interest rate, market risk, I'll say market sentiment, and the purchasing power. Unsystematic risk, on the other hand, are business specific, of that organization specific. They are not like the economic risk. Anyhow, let's get into detail. So systematic risk: when an economy moves into recession, corporate profit will shift downwards. Stock prices, most companies may decline. That's the impact on the economic political, as I was trying to explain.
Systematic risk can be further subdivided into multiple parts. Macro level, they are generally macro. Macro means large scale. These are not limited to the company only. These are not micro, these are macro. ठीक है. सो इंटरेस्ट रेट रिस्क, वही जब आपका चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर आपने कोई अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रखा था जिसमें आपने इंटरेस्ट रेट से 8% लिया हुआ था, अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट 11% हो गया, भाई अगर आपके प्रोडक्ट में आपको तो लॉस ही हो गया सीधे. करेक्ट. और इसकी वजह से आपकी जो दूसरे आपने अपॉर्चुनिटी खो दी, वो भी आपका रिस्क होता है. तो यू हैव टू नो कि ऐसा भी मार्केट में हो सकता है. यू टू प्लान, यू कैन नॉट व्हेन इन अ लॉन्ग टर्म यू कैन नॉट अज्यूम अ सेम और स्ट्रेट लाइन इंटरेस्ट रेट. डू इन सम इकोनॉमीज इट कैन बी वेरी रेयर बट इट कैन बी. अब तो पिछले 1.5 साल से तो इसने भी प्रोसीजर अपना चेंज किया अभी इकोनॉमी को. परचेजिंग पावर रिस्क, अगेन in case the supply is constant and the demand is also constant, the prices will remain same. But in case there is any disruption in supply, then the demand will rise, and the demand will rise, supply is short, price will increase. So that's also a risk. There is a various type of market risk also. So this is shares. So ultimately, whatever outcome of interest rate or purchasing power or market risk, or I'll say they will impact your sort of economy. They will impact your in case you are trading in share. Here by the market they means specific NSE, BSE, but it's also a general statement. Then अगर if interest rate increase, शेयर मार्केट will fall. ये लोग सीधे उसमें डाल देंगे पैसा. यार आपको एफडी पे मिलता है 6% और 7%, शेयर मार्केट में मिलता है आपको से 15%. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ये बढ़ के हो गया 11%, और जैसे ही ये बढ़ेगा ये अपने आप कम आ जाएगा, 11 पे और 10 पे आ जाएगा. एंड ये इसमें रिस्क फैक्टर भी है. अनसिस्टमेटिक रिस्क, सो बिजनेस रिस्क. सो बिजनेस में देखो रिस्क तो होता ही होता है. फर्स्ट पेज पे एग्जांपल दिया हुआ था, मैंने डिस्कस नहीं किया, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. I don't know, few of you might know, but there was a very very big company earlier named Kodak. अब ये सोनी के कैमरा आ गए, कैनन के कैमरा आ गए, पहले सब कुछ कोडक से ही होता था. दे हैड मोनोपोली, दे हैड 95% मार्केट शेयर. अब ये जब से ये क्या कहते हैं डिजिटल कैमरा आ गए, कोडक चला गया. सेम थिंग हैपेंड विद नोकिया आल्सो. नोकिया ने अपना टच स्क्रीन फोन नहीं लाया, सारी कंपनियां टच ले आई. But I think Nokia is recovering now after a setback of around 8 to 10 years. I don't know about the Kodak, but they would also be doing something different. So what I'm trying to say कि businesses are always, यार थोड़ी एनर्जी से पढ़ेंगे भाई. Businesses are always at risk. ठीक है. So higher there can be multiple factors including the competitors. कभी आप ये काम करते थे 100%, अब धीरे धीरे उसमें फिर आप 50% का है. अगर एक फेयर परफेक्ट मार्केट सिचुएशन है, देन नो वन शैल हैव द मोनोपोली. अब एयरटेल का एग्जांपल देख लो. मिस्टर अंबानी ने 2015 में एंट्री की, नाउ इज नंबर 1. सीमेंट में आ गए मिस्टर अदानी जी. तो आपका जहां पे पैसा होगा, बड़े लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, आपका बिजनेस रिस्क पे रहेगा. Protect your business from the competitors is also your responsibility. Sometimes it is very difficult, sometimes it is very challenging, but that is also a risk. आपका सब काम एक जैसा नहीं चलता. यही लाइफ है, यही बिजनेस है. फाइनेंशियल रिस्क, तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आप अपने अगर डेट ले रखा था, आई जस्ट एक्सप्लेन, 8% पे चल रहा था, वो 12% हुआ, आपका सारा P&L चला जाएगा. अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो ट्रेडिंग में तो मार्जिन ही 2 से 3% का होता है. हर बिजनेस में इंटरेस्ट रेट और फाइनेंशियल फैक्टर्स दे इम्पैक्ट. आपने डिविडेंड दे दिया, आपके पास कैश शॉर्टफॉल आ गया. मैं खुद ही अगर इस एनर्जी से बोलूंगा तो आप लोग किस एनर्जी से पढ़ोगे? चलो लेट्स शो द एनर्जी. डाइवर्जन ऑफ रिस्क, तो आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो. डाइवर्जन और डाइवर्सिफाई, सो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है. देखो, सिस्टमेटिक रिस्क तो मार्केट लेवल का होता है, अनसिस्टमेटिक कंपनी स्पेसिफिक होता है. बट अगर आपने सपोज इन्होंने शेयर मार्केट का एग्जांपल लिया हुआ है, शेयर मार्केट का ही एग्जांपल लेके चलते हैं बिकॉज ये इजी है. शेयर मार्केट और लाइन ऑफ बिजनेस कह लो. अरे भाई, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए थे और आपने 10 जगह डाल रखे हैं,
हर जगह आपको से 15% का रिटर्न आ रहा है, 10 टाइम तो 150%। अगर आपका एक बिजनेस डूब भी गया और दो भी डूब गए तो 15 बढ़ के फिर आपका 120% आएगा, विच इज 8%। बट आपको लॉस नहीं हुआ। सो आप इन केस यू नो यहाँ पे लिखा हुआ है ultimately when the size of the portfolio reaches a certain limit systematic risk would be stable। only systematic risk, क्योंकि उस अगर एक लाइन का बिजनेस डूब गया आपका, भाई आप एजुकेशन लाइन में थे, डूब गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैनेजेबल फर्क पड़ेगा। आपकी एक इन्वेस्टमेंट थी, आपने एक स्टार्टअप में पैसा डाल रखा था, डूब गया, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। सो दैट्स वाई डाइवर्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, बिजनेस लाइन ऑफ योर कस्टमर है। आप एक ही बिजनेस करते हो, आपकी मोनोपोली है, से कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक ही कस्टमर सारा सामान टाटा को बेचते हो, अब टाटा ने वो लाइन ही बंद कर दी, या किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को बेचते हो, उसने बंद कर दिया, तो यू from all the angles diversification is important for Tata also। you are the only supplier। भाई आपका मैं छोड़ो यार, काम छोड़ो, रिटायरमेंट ले ली, बिजनेस में मैं नहीं दूंगा, मेरी मोनोपोली है, दे विल अपनी अपनी मर्जी से रेट बढ़ा दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द रिस्क। देखो सीधे 100% से घट के 20% पे अटका हुआ है। चलो, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एनफ एंड यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड इट। कंपटीशन रिस्क, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। कॉम्पिटिटिव, आप उसी लाइन में रहोगे जहां पर मतलब टेक्निकल, मैंने कोडक का एग्जांपल दिया, नोकिया का एग्जांपल दिया, यू योरसेल्फ नो इट, कार्ड्स का एग्जांपल दिया। शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन होते रहते हैं, लोगों के प्रेफरेंस चेंज होते रहती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू लाइक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथिंग, नाउ दे डू नॉट लाइक इट। वेंडर, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको, वेंडर इटसेल्फ आर चैलेंजेस, और कई बार इनको पीछे से भी पुश हो सकता है, आपके कॉम्पिटिटर ने खरीद लिया उसको। मीन बिजनेस है भैया, सिर्फ देखो, किताब मत पढ़ो, धंधा भी समझो। एक बार ध्यान से बैठ के, मेडिटेशन तो नहीं बोलूंगा, बट एक जनरल ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा 5-6 दिन आप इधर उधर चारों तरफ देखोगे, किसी से स्टोरी सुनोगे, मेरे से सुन लो स्टोरी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिक्स, देन दिस विल बी ओनली बी हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ एक्सेप्टेबल साइंटिफिक लैंग्वेज। अब उसको सिस्टमेटिक रिस्क बोलना है, अनसिस्टमेटिक बोलना है, उसको बिजनेस रिस्क बोलना है, आप उसको प्रोडक्ट रिस्क बोलना है, दैट विल बी द ओनली आउटस्टैंडिंग पार्ट। चलो, बेसिस ऑफ कंपटीशन, आई विल नॉट गेट इनटू दिस। व्हाट ड्राइव्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी पैसा होगा लोग आएंगे। हाउ डज कस्टमर मेक अ चॉइस टू प्राइस, व्हाट आर द मेन ड्राइवर ऑफ कॉस्ट इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट आर द करंट एंड पोटेंशियल रिस्क्स, हाउ इज द प्राइस डिटरमाइंड, ये इंपॉर्टेंट है, किसी इंडस्ट्री का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। अगर आप मोनोपोली हो फिर भी आप सब कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर गवर्नमेंट आ सकता है बीच में, अब पावर सप्लायर हो एंड ऑल, वहाँ पे भी अब वैसे तो बिजनेस बहुत आगे, लाइक टेलीकॉम सर्विसेज है, 3-4 प्लेयर है, और फिर आप वहाँ पे ड्यूओपोली हो या फिर 3-4 प्लेयर है, आपस में डिस्कस करके कर लो। अगर आपके 4 प्लेयर है, आपने अपना अभी लाइक मैंने सपोज, या कुछ भी कह लो, अभी इंस्टीट्यूट है, उसने कोई एक डिजिटल कोर्स लाया, उन्होंने डाला फीस 50,000 है, कौन पड़ेगा भाई, उन्होंने बोला 25,000 है। जब मार्केट में आपको 7,000-8,000 में मिल रहा है या 10,000 में मिल रहा है, then institute will have to provide those services at a much cheaper cost। and एक बार के लिए इंस्टीट्यूट को छोड़ देते हैं। in case there are 2-3 players जो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या एक ही प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो उनको आपस में पैरिटी रखनी पड़ेगी। अगर किसी की क्वालिटी अच्छी है तो थोड़ा सा अच्छा प्राइस चार्ज कर सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीए में इसी के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज बनी हुई है, हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट, बिकॉज प्राइस, कस्टमर्स आर फ्री, उनको भी अपना फायदा देखना है। नो वन इज लॉयल, लॉयल्टी इज अप टू अ सर्टेन पीरियड, धंधे में फायदा सबको होना चाहिए। इंडस्ट्री में भी स्ट्रेस आते हैं, इंडस्ट्री के भी फैक्टर होते हैं, लाइक अगर एक शुगर इंडस्ट्री में हो आप, बम्पर क्रॉप हो गई, प्राइसेस विल फॉल। आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में, they were dependent, I mean because I was part of some sort of chemical industry, जहाँ पे raw material was limited, natural। अभी चलो इजी एग्जांपल लेते हैं, आप इलेक्ट्रिक लाइटिंग में हो, कुछ सीजन आया, उस समय आपका धूप ही नहीं निकली, आप किसी में जहाँ पे बम्पर आपको रेन चाहिए, रेन ही नहीं हुई, कुछ एक फसलें ऐसी होती हैं, शुगर केन टाइप और वट, तो ये सब इंडस्ट्रियां भी साइक्लिकल होती हैं, उसमें भी रिस्क होते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस एटसेट्रा। तो इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट,
ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। अल्टीमेटली आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट इफ यू हियर मी, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में याद रहेगा। What makes an organization financially sustainable? Have more than one source of income. We just discussed diversification is important. Otherwise कोई भी धोखा देके चला जाएगा, आप फंस जाओगे. Have more than one way of generating income. Within one type of product have multiple customer. चाहे आपको 10 रुपए कम करना पड़ जाए, आपका मार्जिन 0.5% कम हो जाए. Do strategic action and financial planning regularly. आपकी जो फाइनेंशियल प्लान, आप कभी भी दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रिस्क मिटिगेशन. आपको पता होना चाहिए कि 1 साल 1.5 साल में कहाँ क्या हो, मतलब यू हैव टू कीप योर आईज ओपन मैन. आपको पता होना चाहिए. हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम. देखो पैसा में बहुत करप्शन होती है. देयर आर वेरियस फ्रॉड्स हैपनिंग एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम वेरी वेरी बिग एंटरप्रेन्योर्स दैट समवन हैज चीटेड देम. हैव ए गुड पब्लिक इमेज. आपको भी आगे इन्वेस्टर से बात करनी है, आपको डेटर से बात करनी है, आपको क्रेडिटर से बात करनी है. आपकी पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कभी भी पेरिश हो जाओगे. जनता किसी भी एरोगेंस पर या जिसकी बैड पब्लिक इमेज है उस पर ट्रस्ट नहीं करती. बी क्लियर अबाउट योर वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन. हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. दिस इज ऑल्सो अगेन लिंक विद फ्यू ऑफ द अदर फैक्टर. यू कैन नॉट कीप स्पेंडिंग मच. अब अगर अनिल अंबानी जी की बात कर रहे हैं, या I don't know किसी का नाम लेना चाहिए, but excessive spending is not good. You shall have you shall be excessive spending from specifically debt. ये नहीं कर सकते आप. सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? बड़ा सिंपल है. जितना भी आपने पैसा जनरेट किया, अगर आपने अपने पास रख लिया तो उसी रेट से ग्रोथ करोगे. अगर आप हर साल 10% का जनरेट करते हो, आपने 10% बिजनेस में रख लिया, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ है. बट अगर आपने 6% का डिविडेंड दे दिया, तो आपकी ग्रोथ कितनी हुई? 4%. तो अगर आपकी ग्रोथ रेट इज फिक्स्ड माइनस डिविडेंड, सो रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट माइनस डिविडेंड इज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. बड़ा ही सिंपल है इसका. अभी आगे एमसीक्यू भी आएगा. अभी बोलोगे 10% सर फिक्स नहीं है, डिविडेंड भी फिक्स नहीं, वेरी गुड. तो बट दिस इज द फॉर्मूला. फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता. बट इन केस यू नो ग्रोथ रेट, then to arrive from the growth rate to a sustainable growth rate, we need to minus the dividend. अगर डिविडेंड नहीं है तो पूरी की पूरी एज आई सेड फिर 10% हो जाएगी. ठीक है. What makes an organization sustainable? Have a clear strategic direction. Scan environment. Sometimes वो बिजनेस को लेके डूब जाते हैं. Retain competitive staff. अरे भैया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, 100 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन है, आपके इतना बड़ा बैंक है, आपको लोगों को संभाल के रखना पड़ेगा. यू हैव टू पे देम एज पर द कंपटीशन और एज पर द मार्केट और एज पर देयर वैल्यूज, अदरवाइज दे विल लीव. उनको कोई, दे आर नॉट द शेयर होल्डर. टू बी ए सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेन बंदा आपका चला जाएगा, वट एवर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, आपको संभाल के रखना पड़ता है. अब मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा के साथ जो किया, और रोहित शर्मा किसी दूसरी टीम में जाएगा, चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिटायरमेंट भी ले रहा है, बट इट जस्ट एन एग्जांपल. यू हैव टू रिटेन द गुड टैलेंट. समटाइम्स दे माइट इवन नॉट परफॉर्म, बट स्टिल यू हैव टू रिटेन देम. Adequate administrative and financial infrastructure, demonstrated effectiveness. I mean, दिखाना भी पड़ेगा आपको कि you have sort of courage and the resources whenever needed. कम्युनिटी का सपोर्ट, जहाँ पे कम्युनिटी की इमेज थी वो भी आ गया. अगर आपको कम्युनिटी की सपोर्ट मिलेगी, देन यू आर ए सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्ट्स में बहुत रिस्क होते हैं, खासतौर पे अगर आप स्टार्टअप स्पेस में आओगे, कितने रिस्क होते हैं. टेक्नोलॉजी रिस्क, अगेन कोडा का एग्जांपल. परफॉर्मेंस रिस्क, चलेगा नहीं चलेगा. मेरे खुद की फैमिली में वो कुछ बनाते हैं, कुछ वो फैब्रिकेटर यूनिट है उनका, उन्होंने पूरा सामान एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ पे वो प्रोडक्ट चला नहीं, छोटा सा एक नट बोल्ट खराब था. परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट रिस्क वी जस्ट डिस्कस. ऑर्गेनाइजेशन रिस्क, सीधी सी बात है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स में कैपेबिलिटी नहीं है, तो देन यू विल स्ट्रगल. सप्लाई चेन तो होता ही है. यूक्रेन में वार हो गया, आपका सारा सामान वहीं से आता था, आप भी डूब गए. आपके इजराइल से आपकी कोई टेक्नोलॉजिकल टाइप था, वहां से भी सपोर्ट नहीं मिल पाई, कहानी खत्म. सो सस्टेनेबल सप्लाई चेन होनी चाहिए. हाउ टू फाइनेंशियल रिस्क वी जस्ट डिस्कस. हाउ टू रिड्यूस प्रोडक्ट सर्विस रिस्क. थ्योरी में तो आसान लगता है, सब लोग ये करते होंगे. पहले तो टेस्ट करो, टेस्ट 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 परफॉर्म. सब लोग टेस्ट ही करते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी करते. इसीलिए
यहाँ पर ये इतना बड़ा पैरा लिखा हुआ है कि भैया अगर आपने टेस्ट करके भेजा होगा तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर मच हायर without testing you might fail. Come on guys, bring in the energy. So बस मैं आपको एक ही ये पढ़ाना चाहता था, ये मेरे को अच्छा लगा था. If a company has ROA of 8%, it pays 60% dividend. तो इसकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होगी? 8% का 60% चला गया तो 4.8% चला गया, बचा कितना? 3.2%. चलो, enjoy yourself, look forward to be in touch, look forward to be a faculty of ICAI and teach you free of cost, as teaching is my passion and I'm happy to do it nearly at free of cost. Thank you so much. Take care.